You'll be blessed in the city and blessed in the country, says the Lord in Deuteronomy 28:3. व्यवस्था विवरण 28:3 में परमेश्वर कहते हैं, धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में। God will keep you blessed wherever He places you. परमेश्वर आपको आशीषित करेगा जहां वो आपको रखता है। It's not the place that you stay which is going to give you a blessing. और यह तो वह स्थान नहीं है जहां आप रहते हैं जो आपको आशीष देगा। Many times people ask me, should I have my house here, near my house? This particular thing is there, will it affect me, and so on. कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या मैं अपने घर को इस स्थान पर लूं या मेरे घर के पास ये स्थान है, क्या मुझे प्रभावित करेगा? You need Jesus in your heart. आपको यीशु को अपने हृदय में रखना है। He says, I will make your heart, your body, my temple. और परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हारा हृदय, तुम्हारे शरीर को मैं अपना मंदिर बनाऊंगा। I'm standing at the door of your heart and I am knocking. मैं तुम्हारे हृदय के द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। And if you hear my voice, the voice of Jesus, and you say, Jesus, come in, I will come into you. और यदि आप मेरी आवाज को, यीशु की आवाज को सुनकर कहेंगे, यीशु अंदर आओ, तो मैं अंदर आऊंगा। I will sup with you. मैं तुम्हारे साथ भोज करूंगा। Yes, that is the heart of Jesus. हाँ, यही तो यीशु का हृदय है। He wants to be involved in every area of your life, in your family, in your personal life. आपके व्यक्तिगत जीवन में, आपके पारिवारिक जीवन में वह सम्मिलित होना चाहते हैं। And when Jesus is there, His blessings, His grace will always be upon you. और जब यीशु वहां है तो उसका अनुग्रह और उसकी आशीषें आप पर बनी रहेंगी। Everything you do will be blessed. जो कुछ आप करेंगे वो आशीषित होगा। Everything you have will be blessed. आपका सब कुछ आशीषित होगा। Everyone who is with you will be blessed. जो आपके साथ है वो आशीषित होंगे। The Bible says God blessed Obed-Edom बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने ओबेदेदोम को आशीषित किया and everything that he had. और जो कुछ उसका था, And God blessed everyone in his family. और उसके परिवार में हर एक को परमेश्वर ने आशीषित किया। And the king heard about it. और राजा ने इस बात को सुना। That's how your family will be. और इसी प्रकार से आपका परिवार भी होगा। Yes, the Lord is ready to come in and do everything for you. हाँ, परमेश्वर तैयार है आने के लिए और सब करने के लिए तैयार है। The Lord will perfect everything concerning you. परमेश्वर आपसे जुड़ी हुई हर एक बातों को सिद्ध करेंगे। You'll be blessed in the city. आप शहर में आशीषित होंगे। You'll be blessed in the country. आप देश में आशीषित होंगे। God will raise you and your family members to high places in the country. परमेश्वर आपको और आपके परिवार के सदस्यों को देश में ऊंचे स्थान पर For that बैठाएंगे। He is sending the Spirit rain, this Holy Spirit rain upon you. Receive the Holy Spirit. और इसके लिए परमेश्वर अपनी आत्मिक वर्षा, पवित्र आत्मा की वर्षा को भेज रहे हैं, उसे ग्रहण करें। Here's the wonderful testimony of Kavipriya. कवि प्रिया की एक सुंदर गवाही यहाँ है। Her father passed away when she was a child. जब वो छोटी बच्ची थी, उसके पिता गुजर गए Mother took care of her. और माता ने देखभाल की। She had a younger brother. उसका एक छोटा भाई है She was living in a village. और वो एक गांव में रहा करते थे। And the mother sent her to a hostel. और माता ने उसे हॉस्टल में भेज दिया। And everyone in the family criticized her. और परिवार के हर एक लोगों ने आलोचना की। And it was at that time she came to a Jesus Calls meeting. और उसी समय वो यीशु बुलाता की सभा में आई। I was praying for the students. मैं विद्यार्थियों के लिए प्रार्थना कर रहा था। And the girl's grandmother joined her in the Young Partners Plan there. और उस बच्चे की दादी ने उसे युवा सहभागी में जोड़ा था। And the exams came. और परीक्षा का समय आया। She received 447 marks out of 500. और 500 में उसे 447 अंक प्राप्त हुए। She was the first in her school. अपने पाठशाला में वो अव्वल आई। Completed her +2. 12वीं कक्षा की पढ़ाई भी पूरी की। Completed her BA, MA. MA, BA भी उसने पूरा किया। And she completed it with a gold medal. और स्वर्ण पदक के साथ उसने इसे पूर्ण किया। Now she's working in a private company. एक प्राइवेट कंपनी में आज कार्यरत है। Yes, my friend. हाँ मेरे दोस्तों, From nowhere, God raised her up. जहां से कुछ भी नहीं था, परमेश्वर ने उसे ऊंचा उठाया। Blessed in the city. शहर में आशीषित किया। Blessed in the village. गांव में आशीषित किया। Today she is a blessing to many other children in the village too.
आज गांव के बहुत सारे बच्चों के लिए वो आशीष का कारण ठहरी है। God will make you a blessing. परमेश्वर आपको आशीष ठहराएगा। Wherever you are, जहां कहीं आप हैं, He will prosper you. वो आपको समृद्ध करेंगे। A little one shall become 1,000. एक साधारण छोटा 1000 के बराबर You बनेगा। will become 1,000. आप 1000 के बराबर बनेंगे। Lord Jesus, परमेश्वर यीशु, bless your children as you blessed Kavi Priya. कवि प्रिया को जैसे आपने आशीष दी, अपने बच्चों को आशीषित करे। Let your Holy Spirit come upon them right now. इसी समय आपकी पवित्र आत्मा उनके ऊपर आ My जाए। friend, open your heart and say, Jesus, come into my heart. प्रिय मित्रों, अपने हृदय को खोलकर कहे, यीशु मेरे हृदय में आए। Holy Spirit, come into my heart. पवित्र आत्मा मेरे हृदय में आए। Cry out to Him right now. उसे पुकारे इस समय। The Spirit of God is filling you right now. इसी समय परमेश्वर की आत्मा आपको भर रही है। Every spirit of the flesh, हर एक शरीर की बातें, every lust, let it come out in Jesus' हर name. एक बुरी चाहत बाहर आओ यीशु के नाम में। Every addiction, come out in Jesus' name. हर एक बुरी लतें बाहर आओ यीशु के नाम में। Every evil power, come out of the Spirit in Jesus' हर एक name. दुष्ट की सामर्थ बाहर आओ आत्माओं से यीशु के नाम में। Holy Spirit, fill them. पवित्र आत्मा उन्हें भर दे। Holy Spirit, fill them, Lord. पवित्र आत्मा उन्हें भर दे। Fill, Lord. उन्हें भर दे परमेश्वर। Fill, Lord. भर दे परमेश्वर। Without measure. बिना किसी माप के। Let the joy of the Holy Spirit rise up within them. पवित्र आत्मा का आनंद उनके भीतर से बह और निकले। Jesus. यीशु, Jesus. यीशु, Jesus. यीशु Enter into their spirit now. उनकी आत्मा में इस समय प्रवेश करे। Transform them. उन्हें बदल दे। Let the peace of God rest. परमेश्वर की शांति निवास करे। From today, bless the studies of the children. बच्चों की पढ़ाई को आज से आशीषित करें। Give them very high marks. उन्हें उच्च अंक दें। Bless them with the best job. उन्हें उच्चतम नौकरी से आशीषित करें। Prosper them. समृद्ध करें। Joy in the family life. पारिवारिक जीवन में आनंद हो। Joy in the business. व्यापार में आनंद हो। Encourage them and elevate them. उन्हें आशीषित करें और ऊंचा उठाएं। Let the hand of God do everything for them, Lord. परमेश्वर का हाथ उनके लिए हर एक कामों को करे। Make them a mighty servant of God. परमेश्वर का सामर्थी दास बनाए। Michael, माइकल, God's power is coming upon you right now. परमेश्वर की सामर्थ इसी वक्त तुम्हारे ऊपर आ रही है। The Spirit of God is transforming you to be His mighty angel. परमेश्वर की आत्मा तुम्हें परिवर्तित कर रही है ताकि तुम उसके प्रतापी सामर्थी दास बनो। Surely the Lord will give you power to deliver the people निश्चय परमेश्वर तुम्हें सामर्थ देगा कि तुम लोगों को बंधुआई से छुड़ाओ through the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा। Thank you for using thy children, Lord. धन्यवाद अपने बच्चों को इस्तेमाल करने के लिए। In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमीन। My friend, मेरे दोस्तों, if you're below 30 years, join the Jesus Calls Young Partners plan and become a blessing to thousands of people. यदि आप 30 वर्ष से कम आयु के हैं तो युवा सहभागी में सम्मिलित हों और हजारों के लिए आशीष का कारण ठहरें। Parents and grandparents, join your children, your grandchildren in the Young Partners plan of Jesus Calls. अभिभावक अपने जवान बच्चों को युवा सहभागी योजना में जरूर सम्मिलित करें Let them have a beautiful, blessed future. ताकि उनका सुंदर भविष्य हो, Let them be a blessing to others. ताकि वो दूसरों के लिए आशीष का कारण ठहरे। Subscribe to this video. इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, Share this with everybody. हर एक के साथ इसे साझा करें। And also join the Jesus Calls WhatsApp channel. यीशु बुलाता है कि व्हाट्सएप चैनल में भी आप जुड़ें। Here's how you can do it. इस तरह से आप जुड़ सकते हैं। इस मौके को मिस ना करें। தவற விடாதீர்கள் ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಇದು ನಷ್ಟಪಡುತ್ತಿರದು। மிஸ் செய்யకండి हाँ, ये एक ऐसी सभा है जिसको आपको 2025 में नहीं चूकना चाहिए। Your sorrow will turn into joy. बेत्सदा आशीष सभा रविवार 13 जुलाई दोपहर 2 बजे। And every lump, every boil, every tumor disappear right now in Jesus' name. मेरा ये कान का सामने में बॉल निकला था 2 साइड में और बहुत ही बड़ा हो गया था। जैसे ही प्रेयर कंप्लीट हो गया तो मैंने टच किया तो ये ऑलरेडी सूख गया था। Big boil was there. बिग बॉल वाज देयर। Now it's completely gone. Absolutely nothing. Thank you, Jesus. We welcome you all on July 13th. 13 जुलाई को हम आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। July 13th is a special day for me. 13 जुलाई तो मेरे लिए बहुत ही विशेष दिन है। That day the Lord anointed me with the Holy Spirit
I know God is going to fill you too. इसी दिन परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा से अभिषेक दिया और मैं जानती हूँ आपको भी भर देंगे। It is going to be a great day. ये तो बहुत ही महान दिन होगा There will be deliverance. और छुटकारा होगा। Where the Spirit of the Lord, there is deliverance. जहाँ परमेश्वर की आत्मा है वहाँ पर छुटकारा है। Come and be blessed. आकर आशीष पाइए। We'll wait to pray with you. हम आपके साथ प्रार्थना करने का इंतजार कर रहे हैं। Come with all your friends and family. अपने सभी मित्रों और परिवारों के साथ में आइए। बेथसेदा आशीष सभा, रविवार 13 जुलाई दोपहर 2 बजे। स्थान डॉक्टर DGS दिनकरन सेंटर, कारुण्या नगर, कोयम्बतूर। गांधीपुरम बस स्टैंड और कोयम्बतूर रेलवे स्टेशन से कार्यक्रम स्थल तक विशेष बसें चलेंगी। आवास और यात्रा सहायता के लिए विशेष रूप में अन्य राज्यों या जिलों से आने वालों के लिए कृपया संपर्क करें 9487846601। एक परिवार के रूप में आए। My precious sister Meenu Sharma, today we remember your beloved husband, Mr. Deepak Sharma, on his birthday. प्रिय बहन मीनू शर्मा, आज हम आपके प्रिय पति लेट श्री दीपक शर्मा को उनके जन्मदिन पर स्मरण करते हैं। I know you must be missing him so much. May the Lord of all comfort give you all the comfort and all the strength to go on. मुझे मालूम है कि आप उन्हें बहुत याद कर रहे हैं। वो सारी शांति का देने वाला परमेश्वर आपको शांति और आराम दे और आगे बढ़ते रहने के लिए अपने बल को दे। According to Psalm 29:11, the Lord gives strength to his people. The Lord blesses his people with peace. भजन संहिता 29:11 के अनुसार परमेश्वर आशीषित करे, जहां वचन कहता है यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा, यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। Father, comfort our precious sister Meenu Sharma and give her all the money back which has to come to her by your mighty power in the name of Jesus. Lord, give her spiritual grace and all the peace and your presence, Lord. परमेश्वर बहुमूल्य बहन मीनू शर्मा को आराम दे, शांति दे परमेश्वर, और उनके सारे रुके हुए पैसे उन्हें वापस मिलने पाए। आपकी सामर्थ के द्वारा यीशु के नाम से ये मिलने पाए। आत्मिक अनुग्रह दें, अपनी शांति दें और अपनी उपस्थिति से भर दें। Bless Ashil with a better job and blessings in the family. Ashima with blessing in the job and give Ashima a wonderful life partner, Lord. Honor dear child in the name of Jesus. Amen. आशिल को बेहतर नौकरी और परिवार में आशीषें दे खुदा। आशिमा को नौकरी में आशीष दें और अच्छे जीवन साथी से आशीषित करे। आपके बच्चों को आदर मिले परमेश्वर यीशु के नाम में, आमीन। God bless you.